Morning everyone, I am Shikha Bhatti. My name is Sanskriti Verma. My name is Aman and I am Neha. My name is Rohan Kumar and My name is Gunme. My name is Arun Gupta. My name is Divya. My name is Sarvesh and I am Adarsh Singh from class 11th at Paul. everyone. My name is Harsh Kaushik. Morning everyone. My name is Sanskriti Verma. I am from class 11th and I am going to recite on a topic, Introduction to Accounting. Accounting is a systematic process which include various processes like first is recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the information to the users. Second, I'm going to talk about the characteristics of accounting. Characteristics. First, identifying of financial transactions and events. It records only the financial transaction which is done on the monetary basis, like a money on the money basis. Second, measuring the identified transactions. We have to measure that the transaction has been done is on money basis or not. Third, recording. Recording is an art of accounting. It is very main feature for the accounting because we have to record all the things in the book of accounts. Fourth, classifying. The process of grouping transactions or entries of one nature or at one place. Classifying is the process where we have to classify the different heads. Then after that, summarizing. The presenting of classified data in a manner which is understandable, understandable to the users, for the external users and the internal users. Then next is analyzing and interpreting the financial information. The users of the financial data can make a meaningful judgment by visualizing the records in the book of accounting. Then last one is communication. Communication where the users can communicate for the financial statement. That's all. Thank you. Good morning everyone, I am Shikha Bhatti. My today's topic is branches of accounting and difference between bookkeeping, accounting and accountancy. Branches of accounting. हम अकाउंट्स को अलग अलग ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ होते हैं जिनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए हमने ब्रांचेस को अलग अलग अकाउंटिंग को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करा है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. First is financial accounting, second is cost accounting, third is management accounting. In financial accounting, there are two main purpose. First is to ascertain profitability. Second is to ascertain financial position. फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स करती है, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, second it classify, third summarize and at the last interpreted the result. In cost accounting mainly use manufacturing units. Its main purpose is कि किसी चीज़ की टोटल कॉस्ट बताना. जैसे सीमेंट में हम कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इसका जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है सीमेंट में, उसमें जितनी भी टोटल कॉस्ट लगी है उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंट. मेन फंक्शन है टू असर्टेन एंड एनालाइज कॉस्ट. किसी चीज़ की कॉस्ट को एनालाइज करना, जैसे एडवर्टाइजमेंट में हमें कितना खर्चा हुआ है, रॉ मटेरियल्स में कितने टोटल कॉस्ट आई है. टू कंट्रोल कॉस्ट, मैनेजर ये भी देखते हैं कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है कि उसके बिज़नेस को ना ज़्यादा उसके बिज़नेस को लॉस ना हो, ना वो ज़्यादा उस चीज़ को महंगा करे. नेक्स्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिज़नेस में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है फंड से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, वो हम मैनेजमेंट में काउंट करते हैं. मैनेजमेंट हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है. Good morning everyone, my name is Harsh Kaushik and I am here to represent the topics that I have given from presentation. My chapter is basic accounting terms and the topics we are covering are rebate, books of account, bad debts, goods, expenditure, types of expenditure, capital, revenue and deferred. Rebate.
रिबेट एक तरीके का डिस्काउंट होता है जो हम सेल्स ऑफ गुड के बाद हमें मिलता है। रिबेट इट इज़ अ रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। ये सिर्फ सेलर के द्वारा ही दिया जा सकता है और कोई इसे नहीं दे सकता। रिबेट इज़ ओनली ऑफर अराउंड ऑन द सेल्स। और हमें मिलता क्यों ये, कुछ भी अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट कर दिया, कोई क्वालिटी में ऊपर नीचे हो गया तो रिबेट अलाउड किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट द रिकॉर्ड्स और बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन। एंटिटी मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस की हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल्स है जर्नल, लेजर, कैश बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और भी बहुत सारे एट्सेट्रा। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स एक तरीके का लॉस है जो कि हमें होता है जब बिजनेस कस्टमर्स आर नॉट एबल टू पे बिजनेस ड्यूज इन फुल एंड फाइनल कंडीशन, मतलब वो दे ही नहीं सकते, उस कंडीशन में है ही नहीं वो, क्योंकि उनकी या तो लापता हो गए हैं, उनकी मौत हो गई या तो इंसॉल्वेंसी। और इस टाइप के डेब्ट को हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट इज़ यूज फॉर रीसेल पर्पस, दैट आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, जिसे हम खरीदते ही बेचने के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेशनर हूँ तो मेरे लिए बुक इज़ गुड्स हैं, सबके लिए गुड्स अलग अलग हो सकते हैं। फॉर होम अप्लायंस शॉप टीवी ओवन्स आर गुड्स। एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू फॉर एक्वायरिंग एसेट्स इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर। और इसके बहुत सारे इसकी 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी भी एक्सपेंडिचर का अगर हमें फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके एग्जांपल है परचेज ऑफ अ बिल्डिंग, मशीन एट्सेट्रा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका फ़ायदा हमें 1 साल से कम मिलता है, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट परचेज फॉर यूज विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एग्जांपल हो गए वेजेस, सैलरीज एंड पेड, जो कि रिपीटिंग है। डेफर्ड हो गया जिसका नेचर रेवेन्यू होता है लेकिन उसका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है। इसका एक एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। थैंक यू। Good morning everyone, my name is Rohan Kumar and today I would like to represent the topic accounting assumptions. So the first question is, what are accounting assumptions and why we use them? So accounting assumptions are the fundamental assumptions which are presumed to be followed while making the accounts book. So हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि जो भी अकाउंट्स बने सारे कंपनीज़ के वो सारे हम कंपेयर कर सकें एक दूसरे से, नहीं तो फिर सब अलग अलग फॉलो करेंगे तो फिर हम उन्हें कंपेयर नहीं कर पाएंगे और उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट अजम्पशन इज़ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि जब हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी लाइफ एक फोर्सेबल टाइम के लिए होती है, यानी कि वो इंडेफिनेट होती है और हम उसे बीच में रोकेंगे नहीं, या फिर उसके जो भी फंक्शंस होते हैं उसे हम कम नहीं करेंगे। और इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम एसेट्स को उनके यूज़फुल लाइफ पे पूरा लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने स्टार्टिंग में एक मशीन खरीदी 1 लाख की और हमारे फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू ही 60,000 है तो हमें स्टार्टिंग में ही 40,000 का लॉस हो गया। लेकिन हम इसकी ये करने की जगह हम हर साल 10-10 हज़ार उसे, मतलब मान लो अगर उसका यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स है तो फिर हम उसे 10 ईयर्स तक डिवाइड कर सकते हैं और हर साल उसके लिए अलग से 10-10 हज़ार निकाल सकते हैं। इससे हमारे बिज़नेस पे 10 साल बाद कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि एक बार हम कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम उसे अकाउंटिंग पीरियड के बीच में बार बार चेंज नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो फिर सर वो हमारे अकाउंट्स में एरर आ जाएगा और हम हमारे ट्रू एसेट्स और लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट लॉस, ये सब हम उससे फिर काउंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन को लिखने के 2 मेथड है, रिटर्न डाउन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल है। और लेकिन एक बार जब हमने उसे चूज़ कर लिया तो हम उसे अकाउंटिंग पीरियड के बीच में चेंज नहीं करेंगे। सर नेक्स्ट अजम्पशन इज़ अक्रूवल अजम्पशन। सो अक्रूवल अजम्पशन के ये कहता है कि जब हम एक ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाते हैं तो हम उसे तब रिकॉर्ड कर लेते हैं और तब नहीं जब हम वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि अगर हमने किसी को 1 लाख का सामान बेचा तो फिर हम उसे तभी लिख लेंगे, ना कि तब जब हम वो 1 लाख का कैश हमें मिलेगा। और
एंड और जब वो हमें मिल जाता है तभी वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। थैंक यू। Good morning to one and all present here. I am Neha. I am going to give the presentation about my topic. My topic is heads of accounts. So here we go. There is only 5 types of heads of account. First liabilities, first assets, second liabilities, third capital, fourth revenue, and fifth expenses. Assets are the economic resource of the entity which give the benefit in future. For example, land, building, plant and machinery, furniture. एसेट्स वो होते हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देते हैं. फॉर मोर एग्जांपल, जैसे ये फ़ैन है, अगर ये फ़ैन अभी हमें हवा दे रहा है, ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ये ख़राब हो गया और हम इसे बेचेंगे तो हमें इसका क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, और ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट भी दे रहा है, कैश मिल रहा है. सो ये हम बेनिफिट इन फ्यूचर. फॉर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर एसेट्स इंक्रीज होता है डेबिट में जाता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में जाता है. Second is liability. Liability means amount owned by business. Liability towards owner of the business is termed as internal liabilities, and liability towards the outsider is termed as external liabilities. Okay. रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट क्या है. लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट में जाएगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट में जाएगी. क्या है capital. There are the accounts of proprietor partner who invest amount in business. ये वो capital वो तो जो business में invest करता है. Capital include both capital and drawing. Drawing account वो होता है जो हम personal use के लिए निकालते हैं. Rules of debit and credit. कैपिटल जब डिक्रीज़ होता है तो वो डेबिट में जाता है और इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट में जाता है. रेवेन्यू, देयर आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन. एग्जाम्पल सेल्स, डिस्काउंट, रिसीव. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के जब रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है तो वो डेबिट में जाता है और इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट में जाता है. ओके. एक्सपेंसेस आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ लॉस इन कैरिंग इन बिजनेस. Examples purchase, wages, salary, depreciation, rent, etc. Okay. Rules of debit and credit. डेबिट जब एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट में जाता है और डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट में जाता है. रेवेन्यू हो गया ना. थैंक यू. Hello everyone, my name is Gunme and I'll be doing a presentation on accounting principles. The first accounting principle is going concern concept. This concept states that the business is not started for a limited period but with the intention to make it grow forever. तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि हमें इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक बिज़नेस इस तरह खोला जाता है इस इंटेंशन के साथ कि वो हमेशा चलता रहे, कभी बंद ना हो. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड/अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर फॉर एफिशिएंट वर्किंग. तो उसमें जब आपने एक बार अकाउंटिंग मतलब आपने प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लिए वो आपको हर साल फॉलो करने पड़ेंगे. Money measurement principle, it says that only the events or transactions that can be expressed/recorded in terms of money can be recorded in the books of account. तो उसमें खाली वही चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो सकती हैं जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सके. Dual aspect concept, it states that every transaction/event has dual aspects. One aspect of transaction is debited and the other is credited. Third, last, business entity principle. This principle states that the business and the owner are two separate entities. Thank you. Good morning everyone. My name is Arun Gupta. My today's topic is heads of accounts from the chapter rules for debit and credit. मेरा आज का टॉपिक है ये heads of account. Across the world, all accounts are classified into 5 categories. पूरे वर्ल्ड में अकाउंट्स को हम 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं. एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस. आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थिंक एज अ बिजनेस नॉट एज एन ओनर. ये चैप्टर हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है तो इसके 2 इम्पैक्ट हो गए, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड. अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो डेबिट साइड आएंगे और घटते तो क्रेडिट साइड. अगर लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड आएंगे और घटते तो डेबिट साइड आएंगे. असेट्स,
property owned by the business. For example, plant and machineries, furniture and fixtures, lands and buildings. ये assets 90% ऑफ बिजनेस असेट्स कवर कर लेते हैं. बैंक, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बिल्स, रिसीवेबल, इस टाइप के असेट्स 8% कवर कर लेते हैं. गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये 2% ऑफ एसेट्स कवर कर लेते हैं बिजनेस के. जैसे कि हमने पहले देखा है कि हमारा अगर एसेट्स में बढ़ेगा तो डेबिट साइड होगा और घटेगा तो क्रेडिट साइड होगा. लाइबिलिटी अकाउंट्स आर दोज अकाउंट इन विच अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस. लोन इसके एग्जांपल है. लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बिल्स पेबल. ये बस 5 ही होते हैं इसके एग्जांपल्स. लाइबिलिटी में जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट साइड आएगा, घटता है तो डेबिट साइड. कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द पार्टनर्स इन द बिजनेस, उसको कैपिटल कहते हैं. और ये इंटरनल लाइबिलिटी भी कहलाया जाता है बिजनेस का. अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड आएगा और अगर ये घटता है तो डेबिट साइड आएगा. रेवेन्यू आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम, गेंस एंड सेल्स. इसके एग्जांपल्स है डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेट्रा. अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट साइड आएगा और कम होता है तो डेबिट साइड. एक्सपेंसेस एंड लॉस. एक्सपेंसेस आर द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस और लॉस इन कैरिंग इन द बिजनेस. इसके एग्जांपल्स है परचेजेस, वेजेस, सैलरीज और डेप्रिसिएशन और रेंट. अगर ये बढ़ते हैं तो ये डेबिट साइड आएंगे, घटते हैं तो क्रेडिट साइड आएंगे. थैंक यू सर. Good morning everybody. My name is Divya. This is my topic rules of debits and credit. Rules debits और credit में 2 क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, सेकंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ें आती है. फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट. अब एक एक करके सबको देखते हैं. पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट जो रिलेट होते हैं किसी भी पर्सन से, वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं. फॉर एग्जांपल, राम आ कस्टमर, द अकाउंट ऑफ अलीशा. ये राम में जो एक पर्सन है तो ये इसलिए पर्सनल अकाउंट में आए हैं. और पर्सनल अकाउंट के 3 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट इसका मतलब होता है पर्सन हु आर क्रिएट ऑफ गॉड. फॉर एग्जांपल, राम अकाउंट, आशास अकाउंट. राम एक पर्सन है और ये क्रिएट है गॉड के द्वारा, तो इसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो ये इंक्लूड होते हैं अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस में, और ये रिकॉग्नाइज होते हैं पर्सन इन बिजनेस डीलिंग के साथ. और फॉर एग्जांपल, लिमिटेड कंपनी, क्लब. और नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? ये अभी आया था ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इससे हमें ये पता चलता है हम किसी को दूसरे के सामने हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम इस साल की हमने सैलरी ले ली, अब हम अगले महीने की हमने सैलरी ली तो हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे के सामने कि हम हैं अगले महीने में. फॉर एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अक्रूड इनकम, अर्न इन्वेस्ट अकाउंट. ये सब इसका एग्जांपल है. और हम इसके रूल्स के हिसाब से देखें तो इसमें अगर डेबिट में आएगा तो ये पर्सनल अकाउंट इंक्रीज़ होता है डेबिट में, और क्रेडिट में ये डिक्रीज़ होते हैं. अब रियल अकाउंट ये टैगरीबल और इनटैगरीबल एसेट्स से रिलेट होते हैं. अब रियल अकाउंट को हम एसेट्स भी बोल सकते हैं. टैगरीबल एसेट्स के एग्जांपल रेंट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी. और इनटैगरीबल एसेट्स के एग्जांपल से गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स. और हम इसको रूल्स के हिसाब से देखें तो डेबिट्स इसमें इंक्रीज़ होते हैं और क्रेडिट जो है इसमें डिक्रीज़ होता है. नॉमिनल अकाउंट इसलिए रिलेट होते हैं एक्सपेंसेस, लॉस, गेन, रेवेन्यू के से. और इसे हम नॉमिनल अकाउंट को एक्सपेंस और रेवेन्यू भी हम कह सकते हैं. और ये फॉर एग्जांपल सेल अकाउंट,
परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। और ये जो हम रूल्स में देखें इसको, तो डेबिट में ये डिक्रीज़ होता है और क्रेडिट में ये इंक्रीज़ होते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन 5 चीज़ें कैटेगरीज है, 5 चीज़ें है। फर्स्ट एसेट्स, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट, फिफ्थ एक्सपेंस एंड लॉस। हम इसको डेबिट्स में देखें तो एसेट जो है डेबिट में इंक्रीज़ होता है और क्रेडिट में डिक्रीज़ होते हैं। लायबिलिटी डेबिट में डिक्रीज़ होता है, क्रेडिट में इंक्रीज़ होते हैं। कैपिटल डेबिट में डिक्रीज़ होते हैं, कैपिटल में इंक्रीज़ होते हैं। और रेवेन्यू भी यही होते हैं, डेबिट में डिक्रीज़ होते हैं, क्रेडिट में इंक्रीज़ होते हैं। और लेकिन एक्सपेंस एंड लॉस जो है डेबिट में इंक्रीज़ होते हैं और डेबिट में डिक्रीज़ होते हैं। एसेट जो है ये एसेट ये रिलेट हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक रिसोर्स से रिलेट होते हैं। और ये फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, कैश, बैंक इन डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, बिल्स पेपर, स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब एसेट्स के अंदर आते हैं। लायबिलिटी टाइप ऑफ, ये हम कह सकते हैं इसे, लायबिलिटी में हमें दूसरों को पैसे में देने होते हैं। जैसे एग्जांपल लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, क्रेडिटर, बिल्स पेपर। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट में हमें बैंक को पैसे देने होते हैं। और क्रेडिटर में हमें दूसरे से हमने उधार ले लिया है तो हमें उसे पैसे देने हैं। और कैपिटल अकाउंट कैपिटल जो है ये जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, ये कैपिटल को हम ओनर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ओनर, उसी को हम कैपिटल भी कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती है, कैपिटल और ड्राइंग। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब जो चीज़ हमने बनाई है उससे हमें पैसे हमारे पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड। और इसमें 3 चीज़ें आती हैं, इनकम, गेन और सेल्स। है इनकम, हमें कहीं पे काम किया तो हमें सैलरी मिल गई तो उसमें हमें इनकम हो गया। अब एक्सपेंस एंड लॉस ये इंक्लूड होते हैं केयरिंग द बिजनेस में। फॉर एग्जांपल परचेज, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड और रेंट्स। थैंक यू। Everyone, I am Adarsh Singh from class 11. I'm pursuing from Rose Commerce Academic. I am here to represent a presentation on introduction of accounting. My topic are limitations of accounting and system of accounting. Limitations of accounting. As we see, we have studied about the advantages of accounting. Now we will keep our eye on limitations of accounting. Accounting are not fully exact, इसमें ये होता है हमारा कि जो हमारे डेटा होते हैं वो हमारा एविडेंस पे बेस पे होता है। इस पे जो हमारा डेटा एविडेंस के बेस पे होता है, इसमें हमारा एक तरह से कोई भी फ्रॉड कराता है। सपोज जैसे कि हमने बिलिंग करी है, बिल में किसी ऑब्जेक्ट लाइक कैलकुलेटर का प्राइस है 600 रुपये एंड हम उसमें 700 दिखा रहे हैं। उसमें हम थोड़ा 100 रुपये घपला करके वो जो पर्सन है वो 100 रुपये अपने लिए काइंड ऑफ चोरी कर रहा है एक तरह से, इसलिए एग्जैक्ट नहीं माना जाता। लाइक हमारा अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों हमारे काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। अब ये अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, इसमें हमारा ये होता है कि हमारा फॉर्म में हमारे मैनेजर्स हमारा बहुत काम करता है, एम्प्लॉय हमारा एफिशिएंट है, ये हमारा बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं नोट करते हैं हम ये। और जो ये हम नोट करते हैं, जो मैनेजर कितनी सैलरी ले रहा है ये हम नोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट एंड प्राइस ऑफ द लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग मे बी लीड टू विंडो ड्रेसिंग। This topic is quite important for exam point of view because इसमें ये होता है हमारा कि जो पर्सन होता है वो विंडो ड्रेसिंग कर लेता है। जैसे कोई कंपनी है, उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो क्या करती है, अपनी जो एसेट्स है उसको बढ़ा के दिखाती है एंड जो हमारी उसकी लायबिलिटी है वो कम दिखाती है। उससे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर उसमें
इन्वेस्ट करके सोचते हैं, इसलिए ये काफ़ी हद तक होता है। System of accounting. Systems are accounting are transaction of the booking books of accounting are the two names, namely double entry system and single entry system. Double entry system, system which will organize and the recorded of both the aspect of the transactions. The dual entry system have provide to be the scientific and the complete system of accounting flow followed by the every enterprise of organizations. इसमें हमारा ये समझ आता है कि जो हमारे जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं, बट उसके जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं हमारे उसमें डबल एंट्री सिस्टम में। एंड इसके जो ये प्रूव करता है साइंटिफिक एंड कंप्लीट जो सिस्टम होता है रिकॉर्ड होते हैं वो फर्म की वो ऑर्गेनाइज रहता है। And next topic is single entry system. Under this system, the bookkeeping generally the cash book and the book to the record personal accounts of the are only maintained. It is not really a system because under this system there may be no record of some of the transactions and only parent record and of some other. Single entry system bookkeeping is not perfect and fund and mistakes can be handled and the related result cannot be obtained by this use. Thank you so much. Well done.